Good morning students, welcome back to your online classes. So today we are going to continue with Maths 1 Chapter 3 Polynomials. This is second part of our video. Students, you have to note down that you have to watch each and every video on full screen mode. Okay, and you have to complete your notes through videos only. Now let's start with 3.2. The very first question is, use the given letters to write the answers. So there are some letters given over here with the statement. Now we have what we are will going to do, will use the given letters. हम लोग letters का use करके हम लोग इसका solution निकालेंगे. So there are 8 trees in the village lad. The number of trees increases every year by b. Then how many trees will there be after x years? So हम लोग क्वेश्चन क्या दिया गया कि यहाँ पर कितनी 8 trees है विलेज में. There are 8 trees in the village. मतलब इनिशियली 8 है. फिर इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय बी, मतलब बाय बी हर साल इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ ट्रीज. एंड हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर आफ्टर एक्स ईयर्स. तो एक्स ईयर्स के बाद कितनी रहेंगी? सो सी इनिशियल नंबर ऑफ ट्रीज इन द विलेज इज ए, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज एवरी ईयर बी. तो ए प्लस बी तो फॉर श्योर रहेगी, बट कितने ईयर्स तक रहेगी? एक्स ईयर्स तक. तो ए प्लस बी इंटू एक्स. So number of trees in the village after x years will be initial number of trees in the village, that is A, plus increase in the number of trees every year by B with the product of x. Because कितनी number of trees कितनी बढ़ेगी तो वो भी तो multiply होगा ना, है ना? Okay, so that's it. So this is initial number of trees is A plus increase in the number of trees every year plus B into x. Thus the number of trees after x years is A plus bx. Now second question. For the parade there are y students in each row and x such row are formed. Then how many students are there for the parade in all? Means एक परेड में परेड टीम वहाँ पर y स्टूडेंट्स रो, y स्टूडेंट मतलब कुछ बच्चे जैसे सपोज y अब एक एक रो में खड़े थे और वहाँ पर x सच रोज थी. तो कितने ओवरऑल स्टूडेंट्स थे? सो इनिशियल so number of students in each row is y, number of rows let's say which is equals to x. तो टोटल नंबर क्या होगा? y इंटू एक्स. जितने बच्चे रहेंगे एक रो में मल्टीप्लाई बाय एक्स, जितनी रोज रहेगी. तो दैट फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द परेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज, दैट इज y इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स और वी कैन से एक्स वाई. तो दस देर आर ऑल इन एक्स वाई स्टूडेंट्स फॉर द परेड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. द टेंस इन द यूनिट स्पेस ऑफ अ 2 digit नंबर इज m and n respectively. राइट अ पोलिनोमियल विच रिप्रेजेंट अ 2 digit नंबर. तो यहाँ पर टेंस और यूनिट टेंस होते हैं, तो वैसे हम यहाँ पर नंबर दिया टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की ऑफ अ 2 digit नंबर इज m and n. सो राइट अ पोलिनोमियल विच रिप्रेजेंट अ 2 digit नंबर. सो सी digit at a tens place is equals to m, digit at a unit place is equals to n. So therefore 2 digit number will be equal to digit at a tens place multiply by 10 because वो tens है, प्लस डिजिट एट द यूनिट प्लेस विच इज़ इक्वल्स टू यूनिट प्लेस में कोई 10 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज यूनिट प्लेस है. तो डिजिट m मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस n इज इक्वल्स टू 10m प्लस n. सो दस द पॉलिनोमियल विच रिप्रेजेंट 2 digit number is 10m plus n. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी हैड टू एड द गिवन पॉलिनोमियल्स. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज x cube minus 2x square minus 2 minus 9 and 5x cube plus 2x plus 9. So let's see. Now we have to add. So we're going to take 2 brackets over here. X cube minus 2x square minus 9 plus 5x cube plus 2x plus 9. Now here x cube plus 5. यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे? लाइक टर्म साथ में रखेंगे. x cube plus 5x cube minus 2x square. फिर x स्क्वायर का नहीं है तो उसके बाद में x वाला टर्म दैट इज़ प्लस 2x minus 9 plus 9. तो minus 9 plus 9 0. x cube plus 5x cube is 6x cube minus 2x square plus 2x. Now second one, minus 7m raised to 4 plus 5m raised to cube plus root 2 plus 5m raised to 4 minus 3m raised to cube plus 2m square plus 3m minus 6 which is equals to हम लोग minus 7m raised to 4 plus 5m raised to 4 plus 5m cube minus 3m cube plus 2m square plus 3m plus root 2 minus 6. So now minus plus minus 7 minus 5 is 2, greater number sign minus. So minus 2m raised to 4 plus minus minus 5 में से 3 गया 2. So we had 2m cube with greater number sign positive plus 2m square plus 3m minus 6 plus root. Now third question. 2y square plus 7y plus 5
plus 3y plus 9 plus 3y square minus 4y minus 3. So 2y square, so square वाला टर्म कौन सा है, plus 3y square plus 7y minus 4y plus 3y, then plus 5 plus 9 minus 3. So 2y plus 3y square is 2y square plus 3y square is 5y square plus 7y plus 3y is 10y, 10y minus 4y is 6y. 5 plus 9, or we can say 5 minus 3 2, 9 minus 2 is 7. Sorry, 5 plus 9 is 14, 14 minus 3 is 11. So we have 5y square plus 6y plus 11. Now second question. Question number 3, subtract the second polynomial from the first. So now here we have to subtract these questions. So very first is x square minus 9x plus root 3 minus of minus 19x plus root 3 plus 7x square. Though here negative sign is mentioned, so the internal sign all will going to get changed, that is minus minus plus 19x minus plus minus root 3 minus plus minus 7x square. So we'll write x square minus 9x plus root 3 as it is. We'll change the signs as there is outside a negative sign. Then what we're going to do, we'll take the like terms, x square minus 7x square minus 9x plus 19x plus root 3 minus root 3 plus root 3 minus root 3 which is equals to, अभी एक x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस 7x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 6x स्क्वायर एंड ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस. Now minus 9x plus 9x, so 19x minus 9x is 10x, greater number sign positive. Again plus minus minus root 3 0. So we have minus 6x square plus 10x. Second, 2ab square plus 3a square b minus 4ab minus 3 of ab minus 8ab square plus 2a square b. So 2ab square as it is plus 3a square b as it is minus 4ab. Now minus 3ab minus minus plus 8ab square minus plus minus 2a square b. So we have like terms as 2ab square plus 8ab square, 3a square b minus 2a square b minus 4ab minus 3ab. So 2 plus 8 10ab square plus minus minus a square b minus minus plus 4 plus 3 7ab. Okay. Now fourth question, multiply the given polynomials. So very first is 2x into x square minus 2x minus 1. So 2 यहाँ पर 2x जो है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा. सो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, देन प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑफ 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1. So now what we are going to have, 2 will remain as it is, x into x square is x cube plus minus minus 2 2s are 4x square, then plus minus minus 2x. Second question, x raised to 5 minus 1 into x cube plus 2x square plus 2. So first we will take first term, second bracket, second term, second bracket. So we have x raised to 5 into x cube is x raised to 8, then x raised to 5 into x raised to 2 is x raised to 7 along with 2, then plus 2x raised to 5. Now here sign will going to get changed as outside there is 1. So each and every term will going to repeat as same, but the sign will going to get changed. So minus x cube minus 2x square minus 2. Now third question, 2y plus 1 into y square minus 2y cube plus 3y. So first term the whole bracket, second term the whole bracket. So 2y into y square is 2y cube minus 2 2s are 4 y raised to 4, then 2 3s are 6 y into y is y square प्लस एज आउटसाइड देयर इज पॉजिटिव साइन और यहाँ पर 1 है तो सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी एज इट इज़, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y. सो प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब 0 माइनस 4y 4 y रेज टू 4 प्लस 6y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 7y स्क्वायर. लाइक टर्म साथ में लिखेंगे अभी, पहले तो हम लोग इसको डिग्री वाइज लिखते हैं. माइनस 4y रेज टू 4 प्लस 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y. 2y क्यूब 0 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 7y स्क्वायर. सो वी हैव माइनस 4y रेज टू 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 3y. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, divide first polynomial by second polynomial and write the answer in the form of dividend is equals to divisor into question plus remainder. So the very first question is x cube minus 64 is equals to x cube plus 0x square plus 0x minus 64. Sorry, x cube minus 64 is the first question. So and what we x cube और a cube minus b cube है तो ये क्या हो जाएगा a cube plus a square
ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सो एक्स क्यूब है राइट। तो एक्स क्यूब क्या रहेगा, ए सॉरी ये माइनस बी क्यूब आएगा, एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी राइट। सो हियर ए स्क्वायर इज नो नो नो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ गया, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग लिखा गया एक्स क्यूब, यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला टर्म। सो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो 0x स्क्वायर, फिर एक्स वाला भी नहीं तो 0x माइनस 64। तो विल राइट दिस एज इट इज़, देन x माइनस 4। नाउ व्हाट वी वांट, यहाँ पर एक्स क्यूब है ओके, यहाँ पर हम लोग को x दिया हुआ है, सो हम लोग क्या करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। सो विल मल्टीप्लाई दिस x विथ एक्स स्क्वायर, सो विल गेट एक्स क्यूब ओके। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, -4 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -4 एक्स स्क्वायर, तो ये बाजू वाले टर्म में आ जाएगा। तो व्हाट विल गोइंग टू गेट, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, माइनस हो रहा है ना तो सब साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 4x स्क्वायर प्लस 0x। नाउ अभी हम लोग को क्या चाहिए, 4x स्क्वायर चाहिए, तो ये x के साथ हम लोग को क्या चाहिए वो देखना है, एक x चाहिए और एक 4 चाहिए ताकि ये 4x स्क्वायर बने। तो एक x एक 4 मीन्स 4x चाहिए प्लस 4x, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4x ओके। सो नाउ विल गेट 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 4x मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो क्या होगा, -16x ओके। सो विल गेट ये -16x, तो ये 0 हो गया, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 16x हो जाएगा और यहाँ 64 आ जाएगा। देन अगेन वी हैव x बट वी डोंट हैव 16, तो हम लोग क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 16 4 ज़ा 64, सो विल गेट 16x माइनस 64, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सो विल गेट रिमाइंडर एज 0। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, सो एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के बाद में एक x का टर्म होता है वो नहीं है तो वो 0x डाले फिर प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर जो हम लोग का ये है डिविडेंड है वो आएगा ओके, सॉरी डिवाइजर है वो आएगा। नाउ हियर वी वांट x रेज टू 5 वी हैव x स्क्वायर, सो व्हाट वी विल टू डू, x क्यूब चाहिए और 5 चाहिए, सो 5x क्यूब आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 5x क्यूब आएगा, बट सेकेंड टर्म क्या आएगा 5x रेज टू 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5x रेज टू 4 बिकॉज यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो। देन सब्सट्रैक्शन में ये 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 5 + 4 9x रेज टू 4। नाउ व्हाट वी वांट 2x and 1 9, सो 9x रेज टू 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, सो यहाँ पर ये आ जाएगा। देन 9 इंटू एक्स क्यूब, सो माइनस 9x क्यूब प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 9x क्यूब, सो 9x स्क्वायर 9x रेज टू 4 माइनस 9x रेज टू 4 0 माइनस प्लस माइनस, तो 3x 9 में से 3 गया कितना बचा 6x क्यूब, 9 की साइन क्या बन गई पॉजिटिव, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर साइन क्या आएगी पॉजिटिव। नाउ व्हाट वी वांट, वी हैव x स्क्वायर, वी वांट 1x इन द पावर एंड वी वांट 6 एज अ कोएफिशिएंट, तो 6x, so plus 6x, but 6x into x is 6x into minus x is minus 6x स्क्वायर, so ये बन जाएगा सॉरी हाँ 6x स्क्वायर, सो व्हाट विल गोइंग टू गेट माइनस 6x स्क्वायर हो गई है, फिर ये 0 हो जाएगा प्लस 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 6 + 2 8x स्क्वायर। नाउ व्हाट वी वांट, वी हैव x स्क्वायर, वी वांट 8, सो प्लस सिंपली 8 ओके, सो 8 यहाँ पर हो जाएगा -8x, यहाँ पर -8x बचेगा, 0x नीचे आ गया, तो ये कट करके 0 हो जाएगा और ये प्लस प्लस प्लस, तो ये 8x बचेगा, यहाँ पर 2 आएगा। नाउ यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर छोटा वाला टर्म, सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको एंड करेंगे बिकॉज ये स्मॉलर टर्म आ गया यहाँ पर ओके। सो ये डिविडेंड इज दिस वन, डिवाइजर इज दिस वन, क्वोशिएंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। सिक्स्थ वन इज रेड्यूस पोर्शन में, तो ये वाला सम नहीं आएगा आपको ओके, ये नहीं आएगा, इट इज़ कैंसिल। Now practice at 3.3. Divide each of the following polynomials by synthetic division method and also by linear method. Write a question and the remainder. So first question here is, here also students जो last के दो है वो cancel है, वो reduced है, तो we just have to do first, second, third and fourth one.
So here we're going to solve with synthetic division and linear method. So what is synthetic division, what is linear method? We're going to solve the problem and let's see. Okay, so the very first question is here, 2m square minus 3m plus 10 divided by m minus 5. So सिंथेटिक डिवीजन क्या कहते हैं, हम लोग का डिविडेंड क्या है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, हम लोग का डिवाइज़र क्या है m माइनस 5. सो हम लोग को कभी भी ये सिंथेटिक डिवीजन होता है, ये वाला बॉक्स. सो हम लोग को जब भी ये लेना होता है ना, सो व्हाट विल गोइंग टू डू, ये जो m माइनस 5 राइट, सो ये माइनस 5 को हम लोग हमेशा पॉजिटिव 5 लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 5 होते हैं एंड रेस्ट यहाँ पर क्या आता है, कोएफिशिएंट्स आते हैं. बट ये सीरियल नंबर होना चाहिए, m स्क्वायर है, फिर उसके बाद m⁻⁴, फिर यहाँ पर m0 दैट इज़ नथिंग. ओके, सो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, m का कोएफिशिएंट क्या है -3, 10 का कोएफिशिएंट देन प्लस 10. सो नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला टर्म है ना 2 एज इट इज़ आएगा. ओके, देन 5 2s are 10, सो यहाँ पर 10 है. देन -3 प्लस 10 कितना होता है 7, तो यहाँ पर 7 है. देन 5 7s are 35, सो यहाँ 35 आएगा. देन 10 प्लस 35 45, सो हम लोग का रिमाइंडर क्या आया 45. ओके, सो यहाँ पर इसका लीनियर मेथड क्या रहेगा, लीनियर मेथड इन दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10. सो हियर फ्रॉम 2m स्क्वायर माइनस 3m, 2m m कॉमन है इसमें से, और तो हम लोग क्या करेंगे 2m कॉमन ले लेंगे. ओके बेटा वेट. Now what we're going to do in this case, as 2m square minus 3m plus 10, right? So this is our dividend. What is our divisor? m minus 5. So what we're going to do, हम लोग यहाँ पर m minus 5 सिचुएट करेंगे, so that हम लोग यहाँ पर 2m कॉमन ले रहे हैं और m minus 5 रख रहे हैं. So we have 2m square. But what about this minus 5, ये क्या है, तो 2 5s are 10, 10 है, so minus 10 है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है हम लोग का, राइट. सो माइनस 10 में हम लोग डाल रहे हैं, तो हम लोग कंपलसरी क्या डालना पड़ेगा प्लस 10. Then rest of the term as it is, that is minus 3m plus 10. So what we're going to have 2m m minus 5 plus from here 10m minus 3m is 7m. So 7 again. Then again we're going to write m minus 5 because as it is a divisor हम लोग m minus 5 लिखेंगे. तो अभी क्या एक्स्ट्रा टर्म आया 7m minus 7 5s are 35, तो minus 35 आया. सो यहाँ पर प्लस 35 ऐड करेंगे एंड प्लस 10 विल रिमेन एज इट इज. सो व्हाट विल गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, we'll take m minus 5 as common from here, then we're going to get 2m plus 7 then plus 45. Okay, now second question, x raised to 4 plus 2x cube plus 3x square plus 4x plus 5. so 4 3 2 1 0, तो ये से हम लोग का ये प्रॉपर ऑर्डर में है. देन डिवाइजर x प्लस 2 है, तो हम लोग अपोजिट ऑफ 2 -2 यहाँ लेंगे और यहाँ पर x रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट 1 है, x क्यूब का 2 है, x स्क्वायर का 3 है, x का 4 है, 5 एज इट इज़. सो 1 एज इट इज़ नीचे उतरेगा. देन 2 1s are 2 प्लस माइनस माइनस, सो -2. देन 2 minus 2 is 0. देन -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0. देन 3 plus 0 is 3. 3 2s are 6, ये प्रोडक्ट होगा ये एडिशन होगा. 3 2s are 6 बट -6. फिर 4 minus 6 is -2. देन -2 is +4. Then 5 plus 4 is 9. So our remainder is 9. So the coefficient form of the question is 103 minus 2. Our quotient is x cube plus 3x minus 2 and the remainder equals to 9. अभी हम लोग का क्वेश्चन कैसे मिला, हम लोग का x cube plus 3x minus 2 है बिकॉज ये 0 1 2 3 4. ओके सॉरी 0 1 2 3 4. सो हम लोग का x cube plus 3x -2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 9. हम लोग का रिमाइंडर क्या है 9 है, ये 9 बचा हुआ टर्म है हम लोग का, जो हम लोग का रिमाइंडर आया है. तो रेस्ट जो 4 बच गए हम लोग के, ये क्या है x क्यूब के टर्म्स है 0 1 2 3. तो x क्यूब x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, 3x -2. ओके, एंड रिमाइंडर इज 9. नाउ व्हाट अबाउट द लीनियर मेथड, x रेज़ टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, x रेज़ टू 4 के बदले x क्यूब लिखेंगे और जो हम लोग का डिवाइजर है उसको x प्लस 2 लिखेंगे. तो एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसमें 2x क्यूब, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा टर्म x क्यूब इंटू x रेज़ टू 4 तो हो गया, तो एक्स्ट्रा क्या आ गया हम लोग का 2x क्यूब आ जाएगा. ओके, पर 2x क्यूब भी क्या है ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पर गिवन है, तो हम लोगों ने इसमें से हम लोगों ने x क्यूब निकाल दिए और हम लोग को यहाँ पर डिवाइज़र मिल रहा है. तो x क्यूब निकल गया, तो यहाँ पर x प्लस 2 बचेगा जो हम लोग का क्या है डिवाइज़र है.
प्लस अगेन नाउ इन दिस केस अगर हम लोग 3x निकालते हैं तो अंदर एक x बचेगा, बट हम लोग को क्या चाहिए, x + 2 चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम लोग को बाद में कॉमन लेना है, तो हम लोग x + 2 लिख देंगे, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया, 3 2 = 6x, तो प्लस 6x आया तो माइनस 6x ऐड कर देंगे, देन प्लस 4x + 5 एज इट इज़. नाउ अगेन x³ x + 2 + 3x x + 2, then here 6x plus -6x + 4x is -2x + 5. Now from both of this x³ x + 2 + 3x x + 2 यहाँ पर -2 लिखेंगे, x कॉमन ले रहे, सो x + 2. ओके, तो हम लोग को इन ऑल जहाँ जहाँ x से हम लोग x + 2 लाकर x + 2 कॉमन लेना है, सो -2 x + 2, सो क्या एक्स्ट्रा आया, 2 2 = 4 -4 आया, बिकॉज बाहर माइनस है, तो यहाँ पर ऐड क्या करेंगे, +4 एंड विल राइट हियर +5 एज इट इज. तो यहाँ पर भी x + 2 कॉमन है, यहाँ पर भी x + 2 कॉमन है, यहाँ पर भी x + 2 कॉमन, तो तीनों में से हम कॉमन निकाल देंगे, प्रोडक्ट किसके साथ होगा, x³ + 3x - 2, क्या बच गया, +9. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिविडेंड इज इक्वल्स टू y³ - 21x - y³ + 0y² + 0y - 2. यहाँ पर ऐड किया गया y² और y वाला टर्म, बिकॉज हम लोग को ऑर्डर वाइज जाना है. ओके, बिकॉज y³ - 216 ही है, तो हम लोग को 2 1 0 ये वाले ऑर्डर के नहीं है, तो हम लोगों ने 0 0 लगा दिया, तो कोएफिशिएंट में आएगा 1 0 0 -216, यहाँ पर 2 1 6 है स्टूडेंट्स, इट्स 2 1 and 6. So now again here what we're going to take, this is y - 6. Okay, so what we're going to take opposite of y - 6, that is +6, that is +6. Okay, then 6 here, 6 will place over here, then coefficient 1 0 0 -216. Okay, ये 216 है यहाँ पर, then 1 as it is, 6 1 = 6, 0 + 6 is 6, 6 6 = 36, 0 + 36 is 36, 36 6 = 216, so positive 216 और ऊपर नेगेटिव 216 था, तो वो 0 हो गया, तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0. क्वेश्चन क्या मिल गया, 0 1 2, तो x² + 6x + 36, ये क्वेश्चन बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया. नाउ व्हाट अबाउट लीनियर मेथड, y³ - 216, तो हम लोग y³ में से y² लेंगे और y - 6 लिख देंगे, एक्स्ट्रा क्या आ गया, 6y², तो यहाँ पर -6y², तो यहाँ पर +6y² ऐड करेंगे, फिर -216, देन अगेन व्हाट विल गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, y² y - 6 एज इट इज़, अब यहाँ पर 6y² है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6y लेंगे और यहाँ पर अगेन y - 6 डालेंगे, एक्स्ट्रा क्या हो गया, 6 6 = 36y, तो +36y. देन नेक्स्ट स्टेप, y² y - 6 सब एज इट इज़, 36y है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे 36, क्या बचेगा, y - 6, 36 6 = 216 -216, तो यहाँ पर +216 लगाएंगे और यहाँ पर -216 एज इट इज. देन व्हाट विल गोइंग टू टेक कॉमन y - 6 फ्रॉम ऑल, सो यहाँ पर y - 6 सारे कॉमन ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 216 -216, फिर y - 6 कॉमन लेंगे तो प्रोडक्ट में आएगा y² + 6y + 36. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन एज 2x raised to 4 + 3x³ + 4x - 2x² इक्वल्स टू 2x raised to 4. यहाँ पर डिविडेंड में क्या नहीं है टर्म हम लोग का, x raised to 4 है, x raised to 3 है, x raised to 2 भी है, x raised to 1 भी है, बट कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, और यहाँ पर आधा नहीं आया, तो इट्स ओके, वी कैन राइट, वी कैन मैनेज इट. हम लोग ये नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्टली भी कोएफिशिएंट और डिग्री वाइज लिख सकते हैं. हाउ कुड वी राइट, सी दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 4, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 4 2, फिर x raised to 3 आएगा 3, देन x² आएगा, दैट इज़ -2x², फिर x वाला टर्म दैट इज़ 4, कांस्टेंट नहीं है तो 0. ओके, कांस्टेंट नहीं है तो 0. देन x + 3 उसका अपोजिट लेंगे -3, 2 नीचे आ जाएगा, 2 3 = 6, बट माइनस 3 - 6 is -3, 3 3 = 9, माइनस माइनस प्लस, तो ना +9, -2 + 9 is 7, देन 7 3 = 21, -21, तो 21 4s are यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा, माइनस प्लस माइनस, 21 - 4 is 17, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, अगेन 17 3s are 51, माइनस माइनस प्लस, तो 51, तो रिमाइंडर क्या है 51. क्वेश्चन 0 1 2 3, तो 2x³ - 3x² + 7x - 70. ओके, तो रिमाइंडर इज़ 51. क्वेश्चन इज़ दिस वन. देन क्वेश्चन हम लोग बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये इसका पावर 0, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3, तो 2x³ - 3x² + 7x - 70 and remainder is 51. Now here
linear method 2x raised to 4 plus 3x cube minus 2x square plus 4x. So again 2x cube कॉमन लेंगे, x plus 3 लिखेंगे, देन एक्स्ट्रा क्या आया 2 3 ज़ा 6 क्यूब आया, तो प्लस 6 क्यूब है तो माइनस 6 क्यूब डालेंगे. फिर सेकंड वाले टर्म में 6 क्यूब से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है 3x क्यूब आ सकता है, 3x स्क्वायर आ सकता है, बिकॉज अंदर हम लोग को x plus 3 चाहिए, तो ये x plus 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा, तो प्लस 9x स्क्वायर डालेंगे बिकॉज ये माइनस प्लस माइनस होगा. देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़, यहाँ पर ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर होता है. बट फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 7x कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 7x स्क्वायर होगा. फिर 7x कॉमन लेंगे, अंदर 1x डालेंगे, प्लस 3 डालेंगे, फिर 7 3 ज़ा 21x, तो यहाँ पर माइनस 21x, फिर प्लस 4x आएगा. फिर सेम माइनस 21x प्लस 4x कितना होता है 20 19 18 17, माइनस 17x होगा. सो माइनस 17 अंदर x प्लस 3 लिखेंगे, माइनस 17 3 ज़ा माइनस 51, तो यहाँ पर प्लस 51 ऐड करेंगे. सो सब में से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17 प्लस 50. Okay, now 5th and 6th are not there in the portion, reduced हो गया ये वाला 5th और 6th वाला, so we'll not going to do. So that's it for today. We have completed our 3.2 and 3.2 exercise, 3.2 and 3.3 exercise of this chapter. Complete your notes properly from the videos.